1.1 question 1. And we did use Euclid's division algorithm to find the HCF of. Any other ત્રણ ચાર સમ છે આપણે સોલ્વ કરીએ. તો ફર્સ્ટ વન છે બઘા HCF of. કોને HCF ફાઇન્ડ કરવાનો છે? તો કે ભાઈ 135 and 225. અમે તમને હમણાં પહેલા સમમાં કીધું હતું કે ઓર્ડર ડઝન્ટ મેટર, આપણે તો હાયર લોઅર ચેક કરવાનું. જે હાયર હોય એ ડિવિડન્ડ અને જે લોઅર હોય એ ડિવાઇઝર. ચલો, dividend equal to divisor, મારી સાથે સાથે હા, divisor into quotient plus remainder. साइड में डिवीजन करिए 225 divided by 135. कौन कैसे आंसर बने? व्हाट इज quotient, व्हाट इज quotient બધું બોલવાનું. Quotient 1 remainder 90. 135 1 and remain 90. चलो હવે કોણ બનશે ડિવિડન્ડ? કોણ कैसे બને? 135 divide 135 dividend અને divisor બનશે 190. સરસ. ચલો ડિવાઇડ કરો 135 divided by 90. 91 1 जा question 45. अब રમકડું ચેપ્ટર છે, તમને પૂરું થશે ને ખ્યાલ આવશે. ટેક્સ્ટ બુક નું બધું રમકડું જ હોય છે ભાઈ. પછી એક્સ્ટ્રા સોલ્વ કરો ને ત્યારે ખબર પડે કેટલું આવડ્યું. Forty-five twos are. હવે કરવાની જરૂર છે નહીં, બરાબર ને? Forty-five twos are. આન્સર થઈ જશે આપણો રિમાઇન્ડર 0. રિમાઇન્ડર 0 આવી ગયો એટલે કોઈની શરમ રાખવાની નહીં, બોક્સ કરી દેવાનું અને લખી દેવાનું HCF. એટલા મીનિંગ કે 135 અને 225 બંનેમાં 45 કોમન છે. highest common factor of 135 and 225 is 45. તો કે છે તમને જે નંબર આપ્યો હોય એને પ્રાઇમ ફેક્ટર્સ માં કન્વર્ટ કરો, એટલે કે ટ્રી મેથડ થી તમારે મિનિમમ એના જે નાનામાં નાના ફેક્ટર્સ હતા હોય એ તમારે ફાઇન્ડ કરવાનો. તો પહેલો નંબર છે આપણે કે છે 140. હવે લખવાનું by using factor tree. So 140 ના ફેક્ટર 2 into 70, 2 into 35 and 5 7s. બરાબર? 140 ના થઈ ગયા પ્રાઇમ ફેક્ટર્સ કે જેનું આગળ હવે ડિવિઝન થાય નહીં, એને કહેવાય પ્રાઇમ ફેક્ટર. સેકન્ડ વન. Sonia takes 18 minutes to complete one round. And Ravi takes 12 minutes to complete one round.
મેઇન પેલું કશું ના લઈ જાય હા સર ઓડિયોનું સ્પીકર નહીં હમણાં તો મારે ચાલશે ઓડિયો અહીંયાથી ત્યાં જવો જોઈએ. Now we want to find minimum time required શું કહે છે ક્વેશ્ચનમાં મિનિમમ ટાઈમ after how many minutes will they meet again at the starting point. We want to find time after which they will meet at starting point. For that, we have to find LCM of 12 and 18. બરાબર 12 and 18 ના LCM માટે તમે કોઈ બી મેથડ યુઝ કરી શકો આમાં કોઈ ફિક્સ છે નહીં તમને સોરી આમાં તો એક જ છે ને આપણી પાસે HCF માં બે હતી ને LCM માં તો એક જ છે ફંડામેન્ટલ થિયરમ યુઝ કરો પ્રાઇમ ફેક્ટરાઇઝેશન કહો કે કી મેથડ કહો ચલો 12 ના ફેક્ટર્સ 2 6 2 3 18 ના ફેક્ટર્સ 2 9 3 3 for LCM પેલા શું લઈ લેવાનું બકા કોમન બંનેમાં જે કોમન હોય તો એકવાર ટપકાઈ જ દેવાનું ચલો 2 ટપકાઈ દીધો 3 ને એકવાર ટપકાઈ દીધો હવે કશું કોમન છે નથી તો ભાઈ જે છે વધ્યું છે મૂકી દેવા 3 3 are 9 2 2 are 4 એ લા આવડી ગયો તને મેથડ માંથી કેલ્ક્યુલેટ મલ્ટીપ્લિકેશન આવડી ગયું કોણ બોલ્યું કાદરી બોલ્યો therefore after 36 minutes they will meet at starting point. અહીંયા બગા તમે જે લખ્યું છે ને we want to find time એની બદલે અહીંયા એક વર્ડ એડ કર દો we want to find minimum time after which they will meet at starting point અને મિનિમમ ની નીચે અંડરલાઈન કરી દેજો એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે મિનિમમ વર્ડ આવ્યો અહીંયા એટલે આપણે LCM ને યાદ કર્યો છે if denominator q is in a form of 2 raised to m 2 raised to m अकेला होगा तो भी चलेगा कि नहीं चलेगा चलेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नहीं चलेगा डिनोमिनेटर में 2 अकेला होगा तो भी चलेगा 5 अकेला होगा तो भी चलेगा और 2 5 का कॉम्बिनेशन होगा तो भी चलेगा पावर डजंट मैटर दोनों के पावर सेम हो तो भी चलेंगे दोनों के पावर डिफरेंट हो भी तो भी चलेंगे मतलब होना क्या चाहिए सिंगल 2 मतलब कि 2 अकेला होगा तो भी चलेगा 5 होगा तो भी चलेगा और 2 और 5 साथ में हो गए तो भी चलेगा 2 raised to m और 5 raised to n और 2 raised to m 5 raised to n अगर इस फॉर्म में हमारा डिनोमिनेटर है देन number has
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ये कंक्लूजन आ गया। अभी एक्सरसाइज में जाते हैं हम। हेडिंग क्या है? विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको जो वाला देसी वाला है ना, वो डिवीजन नहीं करना है। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन द स्टेट whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। और इसके लिए हमें काम पे लगाना है ऊपर के थियरम को, जो 1.5, 1.6, 1.7 हमने पढ़े वो। अगर हमारा डिनोमिनेटर 2n 5m फॉर्म में है तो हम क्या लिखेंगे? इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और अगर उसके अलावा कोई थर्ड नंबर है, 2 और 5 के अलावा 3, 7 एक्सेट्रा 11, तो हम लिखेंगे इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो भी आप बोलो। चलो फर्स्ट में लिखता हूँ 13 डिवाइड बाय 3125। अभी 3125 के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे मेरे भाई। आएंगे फैक्टर? इसके लिए मैंने एक वीडियो रखा है यूट्यूब पे, ना आए तो सीखना फैक्टराइजेशन। पहले 3 से ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो 5 से तो होगा ही। होगा 3 से? नहीं होगा, नो। क्योंकि 1 ये है 4 और ये 5 है, तो 3 से नहीं होगा। तो 5 से हम डायरेक्ट ट्राई करते हैं। 5 6 30। किसी को नहीं आता हो तो सीखना। 5 6 30। अभी यहाँ पे 31 है तो रिमाइंडर बचेगा 1। उसके बाद वाला डिजिट है 2, तो अभी हमें किसको डिवाइड करना है? 12। तो 12 को 5 से डिवाइड करें तो 5 2 10। रिमाइंडर कितना आएगा? 2। नेक्स्ट डिजिट 5। अभी 5 को करना है तो 5। चलो फिर से 5 1 फिर आएगा 2 एंड 5 2 एंड फाइजा। 5 1 अभी कितनी बार 5 आया? 5 टाइम्स। यस। तो इसको मैं 5/5 लिख सकता हूँ। यस। तो मैंने बोला था सिंगल अकेला 5 होगा डिनोमिनेटर में तो भी चलेगा, 2 अकेला होगा तो भी चलेगा, और 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे वो मैच करने के लिए मैं 2/0 इंटू 5/5 ऐसा लिख सकता हूँ मैच करने के लिए। यस। 2/0 का आंसर क्या आएगा? 1। और डिनोमिनेटर में 1 हो, मल्टीप्लिकेशन में 1 हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। पर इसके साथ मैच करने के लिए मैंने लिख दिया 2/0 मल्टीप्लाई बाय 5/5। अभी एक सेंटेंस लिखता है हियर q is the form of 2n 5m with, आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी n और m की। देखो 2 का पावर n है और यहाँ पे कौन है पावर, और m का पावर m कितना है? q, that means our denominator q is in a form of 2n 5m with n equal to 0 and 5m equal to 5. Therefore it has terminating decimal expansion। अभी फर्स्ट समय इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, फिर शॉर्ट में लिख दूंगा। और ये आपको रीजन भी देना है मेरे भाई कि इसको कौन हमें अलाउ करता है इसके लिए। थियरम 1.5, राइट। जैसे टर्मिनेटिंग है तो तुम्हारा डिनोमिनेटर ऐसा होगा।
और यहाँ पे तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर ऐसा है इसलिए टर्मिनेटिंग। yes or no? चलो सेकंड नंबर 17/8। अब ये तो बहुत इजी है, हम 8 को 2 क्यूब बोल सकते हैं, और यहाँ पे 5 नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 raised to 0। Yes. yes or no? Yes. तो यही सेंटेंस आपको कॉपी करना है, हियर q इज इन अ फॉर्म ऑफ 2 raised to n 5 raised to m with n equal to 3 and m equal to 0। ये सेंटेंस भी कॉपी करना है। therefore it has terminating decimal exponent। हो गया। नंबर है 43.123456789। आपको पीछे डैश 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 दिखता है, पीछे डैश 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 है? No. नो। Sir. अगर डैश डैश नहीं है उसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग हो मतलब रेशनल। Sir. राइट डाउन सेंटेंस, it has a terminating decimal expansion। it has terminating decimal expansion। कान्ही बहन लिखो, it has terminating decimal expansion, therefore it is rational number। therefore it is rational number। सेकेंड वाला आप देखोगे तो पीछे डैश 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 है ना? और Yes. एक बार आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सर कुछ रिपीट हो रहा है, बट थोड़ा ध्यान से देखोगे तो लगेगा कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रही है। देखा आपने? Yes. Yes. पीछे बेटा डैश 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 है, इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, पहले क्लियर करना है, एक टर्मिनेटिंग के लिए अलग कंसेप्ट था और रिकरिंग के लिए अलग था, मैंने आपको समझाया था। पीछे डैश डैश हो तो नॉन टर्मिनेटिंग और ना हो तो टर्मिनेटिंग। इसमें पीछे डैश डैश है मतलब एक तो फिक्स हो गया कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी हमें चेक करना है रिकरिंग है कि नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा एक बार देखने में कि सर रिपीट हो रहा है 121200, बट यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 12300 है, 1240 है, तो कोई फिक्स पैटर्न है नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, मतलब इरेशनल। राइट डाउन, Irrational. it has non-terminating non-recurring decimal expansion। it has non-terminating non-recurring decimal expansion, therefore it is an irrational number। therefore it is an irrational number। थर्ड, थर्ड में तो आपको ऊपर बार दिखता है बार। Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 9 पे बार है, मतलब कि ये नंबर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। बराबर, बार का मतलब ही है रिपीटेशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, कैलकुलेशन डिवीजन आपका कभी खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। बट रिपीटेशन है 1 2 9 नंबर रिपीट, उसके बाद फिर 1 2 9, उसके बाद फिर 1 2 9, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। राइट डाउन, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपांशन और डेसिमल एक्सपांशन। it has non-terminating decimal expansion, therefore it is a rational number। પેલો जो चार्ट बराबर તમે યાદ રાખો તો બધું આવડશે। वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 plus root 2 है। 6 plus root 2
6 प्लस रूट 2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो क्या करेंगे सर? लेट x इक्वल टू 6 प्लस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। और आप सपोज भी लिख सकते हो, लेट सपोज x इक्वल टू 6 प्लस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अभी क्या करना है? रूट वाले को Right लाओ side. लेफ्ट साइड, और क्या करना है? स्क्वायर रूट। Square root. Both sides. यहाँ पे लिखना है आपको स्क्वायर रूट एट बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर एट बोथ साइड, नॉट स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला A square plus 2ab plus माइनस b टू square. ए बी प्लस बी स्क्वायर, और राइट साइड 36। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2 रूट 2 एक्स, और रूट 2 का स्क्वायर 2. 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट सपाट. सपाट। तो जाना पण ये आयु को 20 टाइम्स तो- करी Sir Harshil Thakur. हर्षिल बेटा, हर्षिल 20 टाइम्स। जो करंट सम चल रहा है वही, हाँ पूरे Sir याद देवड़ान. एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स, सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? T4. अभी क्या करना है? स्क्वायर रूट वाला जो है उसको राइट साइड ले जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 34 एज इट इज, माइनस 2 रूट 2 एक्स राइट साइड आएगा तो प्लस 2 रूट 2 एक्स। इसमें से रूट वाला है उसको एज इट इज रखो, 2 एंड एक्स उसको कहाँ लाओ? लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर। तो राइट साइड बचा क्या? रूट 2 या क्या लिखना है? इज ऑल्सो Rational number. नंबर। अभी तक हमने रेशनली इसको रखा है, अभी हमें स्ट्राइक हुआ कि साला रूट 2 तो इरेशनल है, बट और एक्स स्क्वायर माइनस 34 अपॉन 2x इक्वल टू रूट 2 is also an irrational number. Our supposition is wrong. Therefore, 6 plus root 2 is an irrational number. Sir. बहुत छोटी है, सबसे छोटी मेथड 2 है। सिर्फ 3 या 4 स्टेप हमें लिखने हैं, बाकी खेल खास। देख मेरे भाई, एक सम देख ले फिर आपको आएगा। इसके रिलेटेड है 1.3 का थर्ड का सेकेंड, 7 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करो। मिला? यस सर मिला। तो जो हम फर्स्ट मेथड में करते थे ऐसा ही करना है, एक बार देख लो फिर आप करना नेक्स्ट सम से मेरे साथ। जो भी नंबर है उसको x एज्यूम करो, लेट x इक्वल टू 7 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। फिर क्या करना है? वो स्क्वायर बेयर इसमें कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपको रूट 5 को राइट साइड रखना है और उसके अलावा जो नंबर हो उसको लेफ्ट साइड डिवीजन में लाना है। हो गया? Yes यस सर, यहाँ पे लिखेगा Yes, sir. also इज अ रेशनल नंबर। Rational number. फिर copy. अभी जाके हमें स्ट्राइक हुई, क्या स्ट्राइक हुई? Root 5. But root 5 is an irrational number. Irrational number. Root 5 is irrational. is an Irrational number. Irrational Therefore, number. x by 7 is equal to root 5 is also irrational. therefore x X by 7 equal to five root 5 is Is also also irrational irrational. number. ऊपर तुम्हारा Therefore, our supposition is wrong. Therefore, our supposition is wrong. Usually is wrong. Our supposition Is wrong. Wrong. For 7 root 5 is an irrational number. therefore 7 root 5 is an irrational number. is an irrational number.
चलो एक सम सिर्फ आपको समझना है, उसके बाद हम धनाधन जाएंगे साथ साथ। नहीं 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 सर नहीं। एक एक्स्ट्रा सम मैं आपको पहले सिखाता हूँ। मैंने बोला था मेथड 3 में आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा? सिर्फ नंबर, रूट 3 को इरेशनल प्रूव करो, रूट 5 को करो बाय रूट 7 को इरेशनल प्रूव करो, ऐसा कोई नंबर आपको दिया जाए। तो इसी सभी नंबर्स को जनरली मैं रूट पी से अभी डिनोट करता हूँ, और एक सम ऐसा मैं बनाता हूँ, प्रूव रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। बराबर? यस सर। 3, 5, 7 सभी को मैंने अभी किससे डिनोट किया है? पी से। एक बार आपको पी से पूरा समझ आ गया तो सिर्फ पी को ही हमें रिप्लेस करना है। पूरे सम में 3 हो तो पी की जगह सब जगह पे 3 लिखना है। 5 आयो केस में तो पी की जगह सब जगह पे क्या लिखना है? 5 लिखना है। देखो इसमें स्टेप 1 है हमारा, जैसे उसमें हम एज्यूम करते थे इसमें भी एज्यूम करना है। सपोज जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है उसके लिए आपको लेना है a डिवाइड बाई b। सपोज अंडर रूट पी इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b, बट उसका कंडीशन क्या है? सच दैट HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1। मतलब कि ये दोनों नंबर हमने ऐसे लिए हैं कि इसके बीच में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। HCF इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? दोनों में क्या कॉमन है? 1। वन और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ऐसे हमने ए और बी लिया है, ये हमारा हार्ड पॉइंट है पूरे मेथड का। ये आपने अगर पहले डिक्लेयर नहीं किया तो लास्ट में आप नहीं बोल पाओगे। क्या बोलना है मैं आपको फिर बताऊं। और ए और बी जो है उसको हमको लेना है नेचुरल नंबर में से, मतलब ए बी बिलोंग्स टू एन। बराबर? इतना आपको पहले लिखना है फर्स्ट लाइन। सपोज रूट पी इज इक्वल टू ए बाई बी, और ए बाई बी क्या है भाई? तो कि दोनों हमने नंबर्स चूज किए हैं जिसका HCF 1 है, मतलब कि इस दोनों के बीच में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, और ये दोनों नेचुरल है। अभी क्या करना है? ये जो b है उसको आप लाओ लेफ्ट साइड मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या हो जाएगा? b अंडर रूट पी इक्वल टू a। फिर आपको करना है दोनों साइड स्क्वायर। स्क्वायर एट बोथ साइड। चलो स्क्वायर करते हैं। b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, और इसमें स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाए तो क्या बचेगा? p का स्क्वायर ए a स्क्वायर। स्क्वायर। अभी आप मुझे बताना, मैं यहाँ पे साइड में पहले आपको समझाता हूँ। 3 इंटू 4 हो तो आंसर 12 आता है। यस। यस सर यस सर मैं ये बोलूं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12, चलेगा? चलेगा। चलेगा। चलेगा तो हम कल इस तरह डिनोट करते थे, आपने हमको यस सर। समझाया था। यस सर। यस सर 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। और क्या बोल सकते हैं हम? 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12। 12। 12 इसको आपको इससे कंपेयर करना है। मान लो कि ये बी स्क्वायर जो है हमारा 3 है, पी जो है वो हमारा 4 है, और ए स्क्वायर जो है वो क्या है? 12। 12। का तो काम नहीं है, बट पी और ए का काम है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि पी इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। एम आई राइट? यस सर। यस सर यस सर। कल मैंने आपको लेम्मा जो 3 लिखाए थे, लेम्मा 1 2 3, उसमें शायद सेकेंड लेम्मा में ऐसा था कि अगर p ए स्क्वायर का फैक्टर है तो p उस a का भी फैक्टर होता है। कल मैंने बोला था यस सर। 5 Yes, इज अ sir. फैक्टर ऑफ 625, तो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 25। मतलब कि उसका आप राइट साइड वाले का स्क्वायर रूट करते हो तो उसका भी वो फैक्टर ही बनता है। बराबर है? यस यस सर। सर। यस तो सर यहाँ तक हमारे सम का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ तक आपको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करना है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या किया? जो भी सर नंबर दिया है स्क्वायर रूट में उसके लिए a बाई बी एज्यूम करो,
HCF AB का है 1, वो डिक्लेयर कर दो, AB बिलोंग्स टू N। P को ले गए हम लेफ्ट साइड, दोनों साइड किया स्क्वायर, आ गया B स्क्वायर P इज इक्वल टू A स्क्वायर। ये बाजू में खास आपको लिखना है समझने के लिए। हमें P स्क्वायर का भी, B स्क्वायर का काम नहीं है, मुझे P और A का काम है, इसलिए इस दोनों को मैंने कंपेयर किया है कि P इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर, देयरफॉर P इज आल्सो फैक्टर ऑफ A। अभी क्या करना है देखना, अभी हमें A के लिए वैल्यू एज्यूम करनी है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। P स्क्वायर P इक्वल टू A स्क्वायर, उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1। 1. 1 नाउ लेट A इज इक्वल टू PM। क्या एज्यूम करना है A के लिए, A इज इक्वल टू PM। PM. PM आपके क्वेश्चन में √3 होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, A इक्वल टू 3PM, सॉरी 3M। यहाँ पे मान लो क्वेश्चन में √5 होगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, A इज इक्वल टू 5M। 5M. P की जगह उस नंबर को आपको सिर्फ रिप्लेस करना है। एक बार ये P वाला सम आ गया, फिर √3 आए, √4 आए, √7 आए, जो भी नंबर आए, P के बदले सिर्फ उस नंबर को रिप्लेस करो, बाकी पूरा सेम जो सम है वो कॉपी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेट A इज इक्वल टू PM, सब्स्टिट्यूट इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहां आपको A दिखाई देता है वहां हमें क्या लिखना है, PM। तो लेफ्ट साइड में तो कोई चेंज नहीं होगा, P स्क्वायर P एज इट इज। राइट साइड में जो A था उसके बदले में लिखूंगा PM, मतलब का उसका होगा होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड नो चेंज, राइट साइड P स्क्वायर M स्क्वायर, ऐसा होगा दोनों का स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. अभी आप देखो तो एक बार मैं P कट कर सकता हूँ, राइट साइड जो P स्क्वायर है उसको मैं P इंटू P लिखता हूँ, तो आपको समझ में आए। एक बार मैंने मान लो P कट कर दिया, ये P और ये P चला गया, चलो, तो बाकी रहा P स्क्वायर इक्वल टू P इंटू M, राइट, Yes, sir. Yes, sir. PM स्क्वायर। इसके बदले मैं PM स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर लिखूंगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, No, sir. सिर्फ साइड No. चेंज की। X इक्वल टू Y हो तो हम Y इक्वल टू X लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes. सिमिलरली B स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर है, तो मैंने क्या लिखा, PM स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। ये दो स्टेप को आपको कंपेयर करके बताना, एक ये वाला स्टेप और एक ये वाला। अभी देखो फिर से यहीं पे ये आ गया, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 जैसा आया। Yes, sir. yes फैक्टर ऑफ B स्क्वायर एज वेल एज M स्क्वायर इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ B square. तो हमें M स्क्वायर का यहाँ पे कुछ काम नहीं है, मैं P और B को कंपेयर करता हूँ। P इज अ फैक्टर ऑफ B स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। आपको समझ में ना आए तो वर्ड्स में भी आप लिख देना यहाँ पे, तो 6 महीने बाद दिसंबर में पता चले इसका मीनिंग क्या है। P इज अ फैक्टर ऑफ A, यहाँ पे क्या मीनिंग है, P इज अ फैक्टर ऑफ B B स्क्वायर। square. B square. फैक्टर है तो स्क्वायर रूट का भी होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes sir अभी देखो यहाँ पे हमने क्या भी कहा, P इज अ फैक्टर ऑफ A, यहाँ पे क्या आया, P इज अ फैक्टर ऑफ P, मतलब कि A और B में एक कॉमन फैक्टर क्या है, P है। P. और हमने तो स्टार्टिंग में क्या बोला था कि 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, Yes, sir. बोला था ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. हमने जो अज्यूम किया था, जो गैस किया था, वो क्या हो गया, Wrong. हो गया. मैं तो क्लियर बोल दिया था कि भाई इसके दोनों में HCF 1 है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। और मेथड के हिसाब से P इज अ फैक्टर ऑफ B एज वेल एज P इज अ फैक्टर ऑफ A, दोनों A. में जो कॉमन फैक्टर है उसको बोलते हैं HCF। तो HCF क्या आएगा AB का,
पी आएगा, P नहीं आएगा। कि P वन। आएगा। तो हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, मतलब कि नंबर जो है वो कैसा होगा, इरेशनल। लास्ट में अभी 2 लाइन लिखनी है सिर्फ। फ्रॉम कैलकुलेशन HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू P। स्मॉल p करना है सभी जगह पे, कैपिटल P नहीं। देयरफॉर आवर सपोजिशन Is wrong. इज रॉन्ग, मतलब कि जो नंबर दिया है वो कैसा है, Irrational. Irrational. 3 मार्क्स ऐसे तो नहीं देते, इतना इजी होगा थोड़ी तो 3 मार्क्स देके आपको कोई। 2 3 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको जो फॉर्मेट है वो माइंड में सेट हो जाएगा कि ये स्टेप करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। पहले HCF1 बताना है, फिर P इज अ फैक्टर ऑफ A बताना है, उसके बाद P इज अ फैक्टर ऑफ B बताना है, और लास्ट में बोलना है कि HCF1 नहीं है, क्या है, फैक्ट HCFP है। मतलब कि हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, सो नंबर इज एन इरेशनल। चलो अभी किसी को प्रॉब्लम इसमें? No, sir. Sir, No, समझाने sir. पर अब लिखना स्टार्ट कर दो, सर बोलो। समझाने पर पाँच समझाने प्लीज સમજાઈ દો બેટા, તો તું સમજજે પણ જાગતો રહેજે તો સમજ્યા જ. यस सर અને પહેલા મેં ક્લિયર કરી દીધું, તરત કઈ ગળે ઉતરી જાય એવું છે નહીં ભૈયા, થોડું ડિફિકલ્ટ છે. અને 2 4 વાર તમે લખી પ્રેક્ટિસ કરો ત્યારે આવડે. શું નામ પેલા ભાઈ તારું? સર નીલ પંચાલ પંચાલ. જે નંબર બેટા આપ્યો હોય ને એના ઇક્વલ ટુ લેવાનું આપણે A ડિવાઇડ બાય B. આ કન્ડિશન લખવાની, અંડરલાઈન કરજો મારી જેમ સેમ. HCF of AB is equal to 1, AB belongs to N. B ને લાવ્યો હું લેફ્ટ સાઈડે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં, બંને સાઈડ કરી દીધું સ્ક્વેર. સ્ક્વેર કર્યા પછી આ ફોર્મ આવ્યું, એને કહી દીધું ઇક્વેશન 1. અહીંયાથી શું ડિક્લેર થાય છે, આ બાજુનો લખશો તો ખબર પડશે કે P is a factor of A square, therefore P is also factor of A. ચલો આટલું ક્લિયર થઈ ગયું. આપણો એક ફર્સ્ટ પાર્ટ પૂરો થઈ ગયો. હવે A equal to PM एज्यूम करवाना, लेट A equal to PM, सब्स्टिट्यूट इनटू इक्वेशन 1. जहां भी A दिखता है वहां पे PM रख दो, उसका स्क्वायर करो, कट होता है कट कर दो. उसके बाद ये स्टेप पे आ जाओ, P is a factor of P square, therefore P is also a factor of P. कल आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो पता चलेगा. यस सर तो ये दोनों हमने क्लियर कर दिया, P A का भी फैक्टर है और P B का भी फैक्टर है, मतलब कि उसका HCF क्या आएगा, P आएगा. बट हमने तो स्टार्टिंग में बोला था कि HCF1 है, तो भाई हमारा एजम्पशन जो था वो रॉन्ग हो गया, मतलब कि नंबर जो है वो इरेशनल हो गया. चले आगे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस सर एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट नंबर है. अब की आपको जेलस फील होगा क्योंकि मुझे तो पूरा सम लिखना ही नहीं है, सिर्फ P को चेंज ही करना है. P की जगह मैं सभी जगह पे 3 3 3 लिख दूंगा, 5 आएगा तो 5 5 5 लिख दूंगा, 7 आएगा तो 7 7 7. बट आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा. फर्स्ट नंबर है √5, दिखा आपको? yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. तो यहाँ पे हम करेंगे सपोज √5 इज इक्वल टू A बाई B, HCF ऑफ AB. और यहाँ पे ये तो लिखना रहेगा मेरे भाई, इज अ रैशनल नंबर, ऐसा एज्यूम तो करना पड़ेगा ना. फर्स्ट सम में ऐसा कर दो आप. ये हमने एज्यूम किया कि √P इज इक्वल टू A बाई B जो है वो रैशनल है. फिर यहाँ पे जाके हमें पता चला कि हमने एज्यूम किया वो गलत था, इसीलिए ये इरेशनल. चलो अभी
मैं √5 के लिए कर रहा हूँ, आप स्टार्ट कर दो। कुछ करना नहीं है, जहाँ भी p है वहां से फिर वहां सिर्फ 5 लिखना है और कुछ चेंज नहीं करना। p की जगह 5, p की जगह 5। कौन सा है 1.3 का फर्स्ट? Let √5 is equal to a by b, where HCF of ab is 1, ab belongs to n, is a rational number. b √5, यहाँ भी √5, यहाँ पे आएगा 5। 5 is a factor of a square, so 5 is also a factor of a. आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि सर शायद मैं भी ऐसा कर पाता आपके जैसा, पर आप नहीं कर पाओगे। Phi is a factor of b. Come on, come on. Done, sir. इसके 1.2 third and first આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે બકા LCM and HCF બધામાં બંને ભેગું છે હવે તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે ફર્સ્ટ વન 12 15 and 21 તો પહેલા પ્રાઇમ ફેક્ટર્સ છે આપણે ફેક્ટર્સ તો કરી દઈએ 2 into 6 2 into 3 3 5 and 21 માં શું હશે 3 7 હવે 12 equal to 2 into 2 into 3 15 equal to 3 into 5 and 21 equal to 3 into 7 HCF of 12 15 21 तो HCF માટે શું કરવાનો નસરીબેન common value અને ત્રણમાં કોમન હોય શું છે કોમન ત્રણમાં 3 so HCF is 3 બરાબર હવે LCM માં મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે LCM માં તમારે HCF તો બધા ટર્મ્સ રહે બધા ટર્મ્સ ને મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનો 2 into 2 into 5 into 7 480 કેટલો આવે છે 480 480 ચાલો
Second one. Not 480. Sir, 420. 420. 420 is last one. 17, 23, 29. ला तो हमारा जाएगा जो ना 23 बदले बीजो होगा तो 19 होगा